Hello, dear students. Welcome to the class today. So, children, we are carrying on with this chapter for geography, agriculture, and here we are discussing some of the very important crops of India. When we are discussing about these important crops of India, we need to discuss about each and every aspects of these crops. How it is grown, when it is grown, why it is grown. Yes, you might be thinking, ma'am, why? Of course, rice is important, but then every country does not have rice as its staple crop. सारे लोग चावल essentially नहीं खाते हैं. But then some countries are there, like India is there, जहाँ पे maximum people are engaged or are involved into agriculture. And now the aspect of agriculture and its production is changing. But once upon a time, it was the only economic activity happening in the whole of the country. And 80% of population was involved into agriculture. कुछ लोग थे जो दुकान खोल लेते थे या कुछ और कामों में इन्वॉल्व हो जाते थे, लेकिन गांव में रह रहे हैं, ज्यादातर गांव ही थे. आई एम टॉकिंग ऑफ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट. तो उस समय से राइस ग्रो होता चला आ रहा है. लास्ट वीडियो में व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज, मैंने आपको बताया था 3 मार्क्स के लिए आपको ये तैयार करना है. टॉपिक वाइज इट इज वेरी क्लियरली आस्क्ड which is the staple crop of India. आप राइस बताओगे. Majority of people in India are consuming rice. Second largest producer हमारी country क्या है? It is the second largest producer of rice in the world. China के बाद, after China. And then it is kharif crop. हाय हाय कितनी गर्मी पड़ रही है. Can you see this heat and this monsoon and the rains that are happening? Really disturbing, लेकिन very good for rice cultivation. Rice cultivation के लिए it is a boom. When we are talking of rice, we are talking about its growing conditions. More comfortable is the growing conditions, more good be the would be the rice cultivation and rice cropping. So rice, पहले तो ये हमने देख लिया, these are the conditions to grow rice. अब where is rice grown? कल मैंने आपको मैप भी दिखाया था. वैसे तो I had shown you map yesterday, dear students, but still you need to know about the name of the states. So majorly rice is grown in the north and नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. जो हमने आपको मैप दिखाया था उसमें इट वॉज वेरी क्लियरली मेंशन्ड, इट वॉज वेरी नाइसली एंड क्लियरली मेंशन्ड दैट नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया पे व्हेन राइस इज ग्रोन, तो डेंस, क्योंकि 2 तरीके के उसमें शेड्स थे. One was major rice growing areas and the other was the minor rice growing area. So north and northeastern India, coastal areas and deltic regions. Coastal areas and deltic regions. जहां डेल्टा है, ठीक है. डेल्टा रीजन, you know, the place, I mean Sundarbans, the biggest delta that is there, and dense, there is development of dense network of canal irrigation, जहां पे पानी, देखो, water availability has to be there for proper growth of rice. राइस को अगर अच्छे से ग्रो करना है तो पानी का पूरा व्यवस्था होना चाहिए. एंड प्रॉपर डेंस नेटवर्क ऑफ कोस्टल इरिगेशन, कैनाल इरिगेशन एंड ट्यूब वेल्स
have made it possible. अब क्या है, बहुत सारी जगह पे rice is being grown in the areas of less rainfall also. पहले क्या था, खाली हम ये देख लेते थे rice was grown in the places where proper rains are happening. अच्छी खासी बारिश हो रही है, वहां पे rice is grown. लेकिन now what is there is that dense network of canal irrigation has made it possible, मतलब जहां ज्यादा अच्छी बारिश नहीं भी हो रही है वहां पे भी राइस इज ग्रोन. ठीक है, मेड इट पॉसिबल फॉर ग्रोइंग राइस इन पंजाब. वहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज आर वेरी गुड. पंजाब, हरियाणा, बहुत बारिश नहीं होती है, but then the dense network of irrigation is very well managing the rice cultivation. उत्तर प्रदेश and some parts of राजस्थान. राजस्थान में तो कितनी कम बारिश होती है. हरियाणा, उत्तर प्रदेश and some parts of राजस्थान. ये सब जो जगह है राजस्थान एंड हरियाणा, वहां पे जस्ट बिकॉज ऑफ द इरिगेशन फैसिलिटीज गुड क्वालिटी राइस इज ग्रोन. अच्छी खासी चावल की खेती हो जाती है. तो ये आपको समझना है विच आर द मेजर राइस ग्रोइंग स्टेट्स एंड व्हाट आर द मेजर कंडीशंस टू ग्रो राइस. ठीक है, किस किस कंडीशंस में राइस ग्रो हो रहा है ये भी आपको बताने की जरूरत है. अब हमने राइस देख लिया. मेजर क्रॉप में हमने सबसे पहले देखा राइस. चावल के बिना बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां पे अगर एक टाइम चावल नहीं बनेगा तो प्रॉपरली फूड फैसिलिटीज आर नॉट देयर. ठीक से लोगों को खाना नहीं हजम होगा. आई मीन आई एम एक्सप्लेनिंग इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज. अच्छे से खाना हजम होने के लिए प्रॉपर राइस कल्टीवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसके बाद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप इज व्हीट. ऑफ कोर्स, ठीक है, चावल एंड आटा, चावल एंड रोटी एंड चावल. रोटी एंड चावल हैज टू बी सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप. ये आपको अच्छे से पता है. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया में सीरियल क्रॉप. गॉट इट. पहला तो राइस है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप, मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न. अब क्या हो गया, पहले हमने नॉर्थ ईस्ट, चावल नॉर्थ ईस्ट में है. क्या प्रकृति की माया है, एक तरफ चावल और एक तरफ गेहूं उगाया है. Just a poem, it came to my mind, so I wanted to share it with you. Look, yeah, of course, India is there. Just now I'll be sharing the map work with you. आपको अभी मैं मैप वर्क दिखाऊंगी तो आप समझोगे कि मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ. ईस्टर्न साइड में खूब सारा राइस हो रहा है, बहुत कम गेहूं हो रहा है. वेस्टर्न साइड में लॉट ऑफ व्हीट इज ग्रोन. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप, सीरियल क्रॉप एक्चुअली, मतलब स्टेपल फूड दैट इज देयर. एंड मेन फूड क्रॉप, in north and northwest India. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में अभी मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट में चावल है एंड नॉर्थ वेस्ट में गेहूं है. एंड रबी क्रॉप में क्या है, दिस इज अ रबी क्रॉप. चावल क्या था, इट वाज अ खरीफ क्रॉप. एंड रबी क्रॉप रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन. Rabi crop requires a cool growing season. ठंडे ठंडे में सारी खेती हो जाए तो अच्छा है, जितना ठंडा होगा. एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग. जब गेहूं की फलियां पकती है ना, उस समय बहुत तेज धूप चाहिए होती है.
तो ये ठंडी के बाद वाली जो धूप होती है ना, काफी तेज धूप होती है, एंड दैट जिसमें चिप्स पापड़ बनता है, यस आई एम टॉकिंग ऑफ दैट स्ट्रेट ऑफ दैट सनशाइन। एंड कूल ग्रोइंग, जब बढ़ रहे हैं तो कूल चाहिए, और जब पक रहा है तो हॉट चाहिए, ब्राइट सनशाइन एंड ब्राइट सनशाइन ड्यूरिंग राइपनिंग। जब पकेगा उस समय तेज सनशाइन होनी चाहिए, दैट इज देयर, एंड इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। requires 50 to 75 centimeter of annual rainfall। बारिश होनी चाहिए, रेनफॉल हैज टू बी प्रॉपर, एंड बहुत ज्यादा नहीं, जितना चावल में चाहिए ना उतना रेनफॉल यहां पे नहीं चाहिए, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन, evenly distributed over the growing season। जब तक ये ग्रो हो रहा है, जब तक इसकी खेती हो रही है, तब तक बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहनी चाहिए। एंड देयर आर 2 important wheat growing zones in country। कहां पे गेहूं की खेती हो रही है? 2 important wheat growing zones in the country। There are 2 important wheat growing zones in the country। गेहूं की खेती के लिए देश में ये 2 एरिया है, 2 important wheat growing zones are there। एंड कौन कौन सा है? एक तो है गंगा सतलज प्लेन्स इन नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन, वेस्टर्न रीजन में एंड डेक्कन रीजन में, जहां पे की थोड़ा सा काली वाली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी जिसको कहते हैं। तो गंगा सतलज प्लेन, नॉर्थ वेस्ट गंगा सतलज प्लेन इज द पंजाब रीजन। पंजाब जहां पे की 5 नदियां बह रही हैं, इन द पंजाब रीजन गंगा सतलज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। वीट देखो कितनी कंडीशंस अलग अलग है टू ग्रो दिस क्रॉप, राइस से बिल्कुल अलग है। राइस का ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग एंड सोइंग इज सो डिफरेंट फ्रॉम व्हीट। ओके, अब यहां पे प्लीज समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो 2 इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं वो हैं नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है 1 मार्क के लिए इट्स अ वेरी फ्रीक्वेंट, कभी भी कुछ भी पूछ लेते हैं, विच आर द मेजर व्हीट ग्रोइंग रीजन्स। सो of wheat growing, ठीक है, इज एक तो हो गया गंगा सतलज प्लेन, दैट इज वो जो गंगा सतलज नदी कहां बहती है? ठीक है, सिंधु नदी जिसको कहते हैं, यस सिंधु इज इंडस, आई एम सॉरी, सतलज इज सतलज, and where it is flowing wahan pe we find the growth of wheat on a very large scale, and the other is the black soil of Deccan region। Deccan, दक्षिण जिसको हमने कहा है, that is there, and major wheat, अब states के बारे में बात करेंगे। You know, I had told you कि states के बारे में जानना बहुत जरूरी है। So major wheat growing states are
Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, and some parts of Madhya Pradesh. Madhya Pradesh, maybe some parts may it is grown on a very large scale. Please understand that. So you need to remember the name of the states. The major wheat growing states are Punjab, Haryana, उत्तर प्रदेश. मैं बार बार आपको कह रही हूं, प्लीज मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दीज स्टेट्स वेयर दीज क्रॉप्स आर ग्रोन. जहां पे ये क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं उन सारे जगहों का नाम याद रखिएगा. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश. Rajasthan and parts of Madhya Pradesh, MP. Got it? So when you know about these states, अगर आपको ये states का नाम याद है तो इसको आपको मैप में मार्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. You won't be facing any problem in marking these states on the map. That is there. Okay. So, rainy season, rains, type of soil, type of weather, climate that is needed to grow these crops, rice, wheat, and states. It should be at the tip of your tongue. Believe me, children, when I am saying at the tip of your tongue, मतलब आपको कोई भी कभी भी अगर पूछता है तो आप उसको ये बता पाए आसानी से, ये बहुत जरूरी है. इट इज रियली नीडेड दैट यू आर एबल टू टेल अबाउट दीज क्रॉप्स. 2 क्रॉप्स हमने बात कर लिया है. वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट 2 काइंड्स ऑफ फूड क्रॉप्स. इसके बाद अब जो नेक्स्ट क्रॉप के बारे में हम बात करेंगे दैट इज मिलेट्स. मिलेट्स, अब ये मिलेट्स क्या है? मिलेट्स में यू हैव ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इंपॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया. ज्वार, बाजरा एंड रागी आर इंपॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया. मिलेट्स पता है ये वो वाले अनाज होते हैं ना विच इज वेरी कोर्स, बड़े थिक होते हैं. इट इज वेरी थिक एंड इट इज वेरी गुड फॉर दी हेल्थ. इतना वो कोर्स अनाज होता है ना ग्रेन कि इट इज गुड फॉर दी हेल्थ. दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन्स. बहुत मोटा अनाज होता है एंड द लॉट फिल्ड विथ लॉट ऑफ फाइबर. ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड these are called as coarse grain. Okay, and they have very high nutritional value. जब भी आप मिलेट्स के बारे में देंगे ना, आपको ये देना जरूरी है that they have very high न्यूट्रिशनल वैल्यू. मोटा अनाज है, न्यूट्रिशन बहुत सारा है. जैसे रागी. अब हम अलग अलग मिलेट्स का अलग अलग क्वालिटीज जानने की कोशिश करेंगे. रागी इज वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम. रागी इज रिच इन iron, calcium. Got it? Please remember. अब रागी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू है तो वो क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है. आयरन है, कैल्शियम है,
other micronutrients and roughage. Other micronutrients and roughage. बिल्कुल रफ, एकदम खुरदुरा जिसको कहते हैं. ओके. एंड ज्वार, रागी हमने देख लिया. रागी के बारे में याद रखिएगा. नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं दैट इज अबाउट ज्वार. बार बार मैं बता रही हूं, these crops and their nutritional value is very important. Jowar is the third most important food crop. Jowar is the third most important food crop. Got it? तीसरा, पहला दूसरा हमने देख लिया. अब ज्वार जो है वो तीसरा है. काफी जगह पे यूज होता है, जहां मतलब एरिया एंड प्रोडक्शन बहुत कम है, लेकिन इट इज कंज्यूम्ड ऑन अ वेरी हाई स्केल. पहला और दूसरा हमको पता ही है. राइस हो गया एंड देन व्हीट हो गया. तीसरा ज्वार हो गया. विथ रेस्पेक्ट टू area and production. Got it? किस तरह के एरिया में ग्रो हो रहा है, इसका प्रोडक्शनल वैल्यू क्या है, वी नीड टू नो इट. एंड इट इज अ रेन फेड क्रॉप. काफी सारी इसमें बारिश चाहिए होती है. मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरिगेशन. बारिश जितनी होगी उतना अच्छा ये क्रॉप होगा. सो मोस्टली प्लीज अंडरस्टैंड दैट इट इज अ रेन फेड क्रॉप. बारिश में ही ये ज्यादा से ज्यादा ग्रो करता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ रेन फेड क्रॉप. मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरिया विच हार्डली नीड्स इरिगेशन. मोस्टली grown in moist area which hardly needs irrigation. जहां पे कि इरिगेशन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती. These areas में उसी जगह पे we are finding ज्वार. ओके. जवार प्रोड्यूसिंग ज्वार, क्योंकि थर्ड लार्जेस्ट अगर हम कह रहे हैं तो वी शुड नो दैट विच आर द स्टेट्स ग्रोइंग ज्वार. अब देखो हम कितना न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं, और ये पता नहीं कहां से ये मैदा एंड ऑल दिस का कॉन्सेप्ट आ गया है, जो कि सेहत के लिए इतना खराब है. ये ऑल दीज fast foods and burgers and patty and all these kind of things have really spoiled our health. Lekin then this is very much in practice nowadays. So jowar kahan pe ho raha hai? Major jowar producing states are major jowar producing states. कौन कौन से हैं? सबसे पहले जहां बहुत ज्यादा ज्वार होता है दैट इज महाराष्ट्र. वेरी लार्ज स्केल. ज्वार इज ग्रोन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल एंड कंज्यूम्ड ऑल्सो. महाराष्ट्र, इसके बाद आता है कर्नाटका एंड देन आंध्रा एंड मध्य प्रदेश. महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा एंड मध्य प्रदेश. गॉट इट? हमने रागी देख लिया, हमने ज्वार देख लिया, बाजरा तो बचा ही हुआ है. लेट्स अंडरस्टैंड बाजरा कहां पे होता है. बाजरा आपको राजस्थान में, हरियाणा में, बहुत पानी नहीं चाहिए बाजरा को. टू ग्रो बाजरा यू डू नॉट नीड. Now we understand the maize producing states. Maize is produced in which states? Kharif crop
the temperature that is required, because we talked about jawar producing states may we have seen it is Maharashtra, Karnataka, Andhra. So now when we are seeing the um, bajra, where the bajra is grown, major bajra producing states, Gujarat and Haryana, ragi, a crop of dry region, and shallow black soils. So please go through these details, children, and I think it would be helping you a lot. Karnataka, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Andhra, and Telangana. So when we see these children, when you go through these important crops, the major crops, so map work we will be doing next class. You need to remember the states. Okay, children. So here we come to the end of this video. Thank you so much and all the best to you.